and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high-quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research, and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGTMSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. 12.2 लाख करोड़ तक सीमा रखी जाएगी. Government will facilitate professional institutions such as the निजी डेवलपर्स को उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए, उनकी मजबूती बढ़ाने के लिए design short-term modular courses विनिर्माण के लिए प्रस्ताव रखा जा रहा है. to develop a cadre of इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी कोष बनाया जाएगा जिससे क्रेडिट गारंटी सुनिश्चित होगी उधारकर्ताओं को. ये प्रपोज कर रही है निर्मला सीतारमण. MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust. पर्यावरण के लिए प्रस्ताव रख रही हैं. फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है. And institutions like NIIF and NABFID. सूरत और पश्चिम में जो ब्रह्मपुणे है उससे जोड़ें और राष्ट्रीय जलमार्ग बनाएं आने वाले 5 सालों में. That is tier 2, tier 3 cities which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. And in this launch a coastal year, cargo promotion scheme, financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund
to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. करेंगे जो बढ़कर विकास के केंद्र बन गए हैं। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 2010 से 15-14 में 2 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर भी 25 से 26 में 11.2 लाख करोड़ रुपए के आवंटन तक कई गुना बढ़ गया है। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए मैं इसे 12.2 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने प्रस्ताव करती हूं। यह गति बनाए रख निजी डेवलपर्स का भरोसा मजबूत करने और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास व निर्माण चरण के दौरान के जोखिमों को लेकर है। मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाने का प्रस्ताव करती हूं ताकि उधारदाताओं को विवेकपूर्ण आंशिक क्रेडिट गारंटी मिल सके। अधिकार एसेट मोनेटाइजेशन के लिए एक सफल साधन के रूप में उभरे हैं। मैं सीपीएससी के महत्वपूर्ण रियल एस्टेट एसेट्स की रिसाइकलिंग को तेज करने के लिए समर्पित अधिकार बनाने का प्रस्ताव करती हूं। पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए मैं पहला प्रस्ताव करती हूं। पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर स्थापित करने का, अगले 5 सालों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू करना। इसकी शुरुआत ओडिशा में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल के खनिज समृद्ध क्षेत्रों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धामरा के बंदरगाहों से जोड़ेगा। इन जलमार्गों के लिए जरूरी मैनपावर तैयार करने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र के तौर पर स्थापित किया जाएगा। इससे जलमार्गों के पूरे क्षेत्र के युवाओं को ट्रेनिंग और कौशल हासिल करने में फायदा मिलेगा। इसके अलावा वाराणसी और पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम भी बनाया जाएगा और तटीय कार्गो प्रमोशन स्कीम भी शुरू की जाएगी। रेल से सड़क पर मॉडल बदलाव को बढ़ावा देने के लिए 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी 6% से 12% तक बढ़ाई जाएगी। दूर दराज की कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैं सी प्लेन के स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करती हूं। ऑपरेशंस के लिए सहायता प्रदान करने हेतु एक सी प्लेन VGF स्कीम भी शुरू की जाएगी। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज दिसंबर 2025 में लॉन्च किए गए रोड मैप के अनुरूप होगा। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज टेक्नोलॉजीज बड़े पैमाने पर उच्च तैयारी हासिल करेगी और एंड यूज एप्लीकेशन में और केमिकल्स इस उद्देश्य के लिए अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है। शहरी आर्थिक क्षेत्र, शहर भारत के विकास के इंजन हैं। नवाचार व अवसर, अब हम टियर 2, टियर 3 शहरों और मंदिर शहरों पर ध्यान देंगे, जिन्हें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है। यह बजट शहरों की क्षमता को और बढ़ाना चाहता है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकें। शहरों के आर्थिक क्षेत्रों की आर्थिक शक्ति को पहचान कर उनके खास विकास के कारकों पर ध्यान केंद्रित करना। अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए चैलेंज मोड से सुधार और नतीजे पर
आधारित फाइनेंसिंग व्यवस्था के साथ पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए हम शहरों के बीच 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेंगे। विकास के लिए जोड़ने वाले, जैसे मुंबई से पुणे और पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी तक। वित्तीय सेक्टर, भारतीय बैंकिंग सेक्टर आज मजबूत बैलेंस